Hello. Hi Rupesh. Hi Shruti, how are you? I'm good. What about you? Bus doing good, yeah. So, yeah, I just Yeah. called you because how was the prelims? Generally, I don't know, but for me specifically, it was not good. और I am not clearing it. मतलब मैंने तो पहले बताया भी था तुमको. मेरा तो शायद नहीं होगा इस बार. Uh, sh- GS1 was really bad for me this time. Yeah, this is it. but like last attempt, I still remember you wrote the mains, है ना? Yeah. And this time I was quite hopeful for the prelims and Not even last year. It was in 2023 when the paper was told to be even tougher. But yeah, one of the मुझे toughest लगता of है the कि prelims. 2025 was even tough. मतलब उसमें आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स में से फिगर आउट करना था. यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे थे. तो 2025 वाला जो था, it was definitely tougher than 2023. Forget about 24. Okay, so But 2023 से भी difficult था वो. I just want to ask you one thing. There are Yeah. aspirants, right, who have given Yeah. 3 attempts in UPSC and still they are preparing for the same exam. They are on the same loop. What is Yeah. the one advice you would give to those aspirants? विदाउट एनी डाउट यही कि मतलब थर्ड अटेम्प्ट के बाद डोंट सिट एट होम विदाउट एनी बैकअप प्लान. That is the worst thing that you will do to yourself and your mental health and your peace and so many things more. So just find something that suits you, जो आपके बैकअप में आपको हेल्प करे. प्लान बी जरूर हो. इसके अलावा तो बैठना आई डोंट थिंक दैट मेक लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगला अटेम्प्ट जब तक आता है आपकी एज 1 साल बढ़ गई होती है. वो 1 साल का प्रेशर और बढ़ गया होता है एंड एक्सपेक्टेशंस भी उतने ज्यादा बढ़ गए होते हैं. Yeah. तो आई डोंट सी एनी मीनिंग इन सिटिंग एट होम इतने सारे सालों के लिए, वो भी एक छोटी सी होप के पीछे, राइट? But there are a lot of aspirant. Look, रुपेश, दैट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट मुझे यही लगता है कि इतने समय तक घर बैठना मेंटली इट इज वेरी टैक्सिंग. but Shruti, there are a lot of coachings ना who are saying कि you should be like focus like जैसे रामायण महाभारत में किसी कैरेक्टर को पैट्रोनाइज करके कि you should be focusing like that particular character. गोल मछली की आँख and all that. Don't you think कि मुझे वो भी ये लोग लगता है. आई नो दैट इज नथिंग बट दैट इज जस्ट ग्लैमराइजिंग द पेन, द सफरिंग, जो बहुत ही अननेसेसरी है. आप और भी अलग रास्तों से बहुत अच्छे काम कर सकते हो, बट इसको इतना रोमांटिसाइज करके दिखाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है. yeah. क्योंकि इस ग्लैमर में आके कि ओ हम अर्जुन की तरह लड़ेंगे एंड युद्ध है, रणभूमि, मतलब इतने फैंसी और इतने रिच वर्ड्स को अगर हम इस चीज में अप्लाई करेंगे ना तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, रह जाते हैं. विदाउट एनी रीजन हम कितना सफर करते हैं, कितने लंबे समय तक इस छोटी सी होप के पीछे, राइट? तो एग्जाम दो, आपको 6 अटेम्प्ट मिले हैं मिनिमम, तो उन अटेम्प्ट को दो, मगर माइंडफुलनेस के साथ. कि 2 साल 3 साल आप घर होके आपने पूरे फोकस के साथ किया. उसके बाद जस्ट फाइंड समथिंग दैट विल वर्क फॉर यू. दिस इज इट. Yeah, thank you Shruti, nice talking with you. या बाय. Take care. Yeah, good night. Thank you. So, hi everyone, my name is Pesh, and the purpose of having this telephonic conversation in front of you is that Shruti is a brilliant aspirant. She has given 5 attempts to UPSC, wrote mains on multiple occasions, and this is the time when after 2025 attempts she was saying कि she could not be able to clear the prelims क्योंकि उसका GS paper 1 में she is not able to score that good marks, around 75 or something she is able to score. The point that I want to make it here is that कि 2023 का prelims जो कि UPSC की हिस्ट्री में one of the toughest prelims हुआ करता था, उस prelims को भी क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट 2025 के prelims को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. So one thing is for sure for every one of us, irrespective of our educational background, irrespective of where we come from, one thing is very important कि क्या आप मेंटली रेडी हैं एक नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए. लुक, बिकॉज आज के इस सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ग्लैमर वाला पार्ट कि यूपीएससी कितना इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक बार ठीक तरीके से अटेम्प्ट दोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग विच lot of big coachings are doing, which is being fed to your subconscious mind every other day. आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया है, व्हेन यू गो टू दिस एरियाज लाइक जहाँ पे रेत होता है, तो आप जितनी रेत अपनी मुट्ठी में लो और जितना अपनी मुट्ठी को आप स्ट्रांगली बंद करो ना, वो रेत उतनी ज़्यादा आपके हाथ से फिसलती है. दिस इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी. इट्स अ कंप्लीट लूप. जितना ज़्यादा आप उस लूप में फंसते जाते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे में, चीज़ों को देखने के पीछे में, आप उस लूप में फंसते जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम.
आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू ऑल, रेदर आई एम हियर टू से वन थिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कभी आपने एक ऐसे ब्यूरोक्रेट का स्टेटमेंट देखा है जिसने आकर के नेशनल मीडिया पे या टेलीविज़न पे या फिर न्यूज़पेपर्स में कहा हो कि हमारे देश का बहुत ज़्यादा यूथ बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहा है एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे जिसका खुद का कुछ फ्यूचर नहीं है, और उसके अगेंस्ट में बहुत बड़े बड़े CEO कंपनीज़ के, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, बहुत बड़े बड़े एडटेक्स के जो प्लेटफॉर्म्स को लीड कर रहे हैं, वो आते हैं टेलीविज़न पे और यूट्यूब पे और आकर के कहते हैं कि भाई वो जो इंटरव्यू में उस ब्यूरोक्रेट साहब ने कहा था वो तो गलत है, क्योंकि अगर आप IAS नहीं बनोगे तो शायद आप कुछ बहुत कमाल का नहीं कर पाओगे अपने देश में, बिकॉज डाउन द लाइन आपके दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि इफ़ यू आर नॉट एन IAS यू कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस सोसाइटी. आपने ऐसे भी कुछ बहुत बड़े बड़े टीचर्स को देखा होगा जिन्होंने कहा होगा कि आप अपने लाइफ में UPSC करो या ना करो, बट एक बार UPSC यानी कि IAS की तैयारी ज़रूर करो. क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिरकार में ऐसा क्या है ये IAS की तैयारी में जो सारे कोचिंग वाले कह रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ के कौन सा आप स्किल बिल्ड कर लोगे, कहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. बट हाँ, अगर हम सब लोग, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, राइट, कोई कुछ भी जॉब कर रहा है, सब कुछ क्विट करके UPSC की प्रिपरेशन करने आएंगे तो किसी का मार्केट साइज बड़ा हो जाएगा. दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू थिंक अबाउट. अभी बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, इस बार अटक गया, पिछले बार प्रीलिम्स हो गया था, मेंस पे गया था, इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ. ट्रस्ट मी, आई हैव अ सिंसियर सेट ऑफ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू. अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट कम इन द सेम लूप वेयर लॉट ऑफ एस्पिरेंट हैव वेस्टेड देयर लाइफ. एक छोटा सा होप लेकर के मेंटल फकअप करके हम जो बैठ जाते हैं अपने रूम्स में ये सोच के कि वी विल बी क्लियर इन दिस एग्जाम, एंड एवरी अदर ईयर UPSC कम्स विद अ सरप्राइज. आप कितना भी बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ के जाओ, पेपर में कुछ ऐसा आएगा जो सच में शॉकिंग होगा. सो यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग जस्ट फॉर वन पेपर. It's a humble request to all of you. Start working on plan B. Start working on second option. At least अगर आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, प्रीलिम्स में प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेंस तक भी जाकर के रुक रहे हो, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेकेंड ऑप्शन. अगर आप इनिशियल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया, डेफिनेटली आई वुड से पुट अनदर अटेम्प्ट, गिव योर बेस्ट, राइट. उसको लेकर के आई वुड नॉट लाइक टू से लॉट ऑफ थिंग्स हियर बिकॉज बहुत कुछ है यूट्यूब पे. बट या टू दोज एस्पिरेंट जो इस ट्रैप में फंसे हुए, इस लूप में फंसे हुए, एक पैरामीटर को हमेशा ध्यान में रखना. आर यू फाइनेंशियली कैपेबल इनफ ऑफ अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम अगेन? अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, 3 अटेम्प्ट दे दिए, चौथा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, आर यू एक्चुअली फाइनेंशियली कैपेबल इनफ? आपको लग रहा है कि मेरे पास में कोचिंग करने के लिए, मेरे पास में टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेने के लिए इतने पैसे हैं कि मैं एक और अटेम्प्ट अफोर्ड कर सकता हूँ? बिकॉज एवरीथिंग कम्स अराउंड दैट फाइनेंशियल और मॉनेटरी थिंग. अगर आपके पास वो मॉनेटरी कैपेसिटी है, अगर आपको लग रहा है कि यू हैव दैट पर्टिकुलर स्टफ, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. अगर नहीं है, लुक फॉर सम बेटर ऑप्शंस, लुक फॉर प्लान बी, इमीडिएटली लुक फॉर प्लान बी. अभी 1 हफ्ता 10 दिन, वट एवर द टाइम दैट यू हैव, टेक अ पॉज एंड गो सर्च फॉर सम गुड ऑप्शंस. The world is very big. Look for plan B. I would not say again कि come to the same field, again fight for the prelims, again prepare for the mains and look for the interview. क्योंकि जो भी मूवी आप देखो, चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो कोई भी मूवी हो, राइट, वहाँ पे एक सक्सेस को ग्लैमर करके दिखाया जा रहा है. बहुत सारे ऐसे फेलियर स्टोरीज हैं जिनको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलता है, एंड दे आर एंडिंग अप वेस्टिंग देयर ईयर्स, देयर प्रोडक्टिव ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर लूप. एंड इट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ श्रुति. I think we all are on the same boat. If you compare me, if you take me, even I am on the same boat. A lot of my dear friends, all of us are on the same boat. Second thing, अगर आप initial attempts में हैं, if you really want to attempt this particular exam, one thing I would like to say this to every one of you. अगर possible हो, you can definitely earn some good money in this particular industry as well. आप या तो कॉपी इवैल्यूएशन कर सकते हो, बिकॉज लेट मी टेल यू, कॉपी इवैल्यूएशन को लेकर के देयर आर लॉट ऑफ गुड एस्पिरेंट जिनकी कॉपी इवैल्यूएशन करने से खुद के मेंस आंसर राइटिंग इंप्रूव होते हैं. अगर आप एक आंसर को 20 कॉपीज़ में चेक करोगे, मतलब 20 बार सेम आंसर को चेक करोगे, तो डाउन द लाइन आपकी राइटिंग स्टाइल पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. आप हर आंसर को बार बार उन्हें कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन मोड पे देखे जा रहे हो. तो एक ऐसा व्हाट माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ इज कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो आंसर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेंस के टाइम पीरियड में आंसर इवैल्यूएशन एस्पिरेंट ही करते हैं, राइट. आप करोल बाग में रह रहे हो, ओल्ड राजेंद्र नगर पे या फिर मुखर्जी नगर पे, दे आर दी एस्पिरेंट जो अल्टीमेटली मेंस में उस आंसर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, राइट. तो अगर आप मेंस आंसर को इवैल्यूएट करते हो तो आपकी प्रिपरेशन डाउन द लाइन कहीं ना कहीं पहले से बेटर होती है, एंड यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ मेंस. So if you have time, if you really want to improve your answer writing practicing or you want to improve your preparation,
you can definitely look for some big coachings or even any coaching. Big coaching has a lot of parameters to look into people. आपका means नहीं हुआ, they will not recruit you, they will not hire you. But there are a lot of startups, right, who can actually give you that opportunity. You can just go part-time basis पर, full day नहीं, 2 घंटे 3 घंटे work in this copy evaluation. Because I still remember I was working in Drishti IAS and I was making question for history optional. So what my personal experience was, by the time I was working as I was preparing as an aspirant, so I was just randomly reading books. N number of books are there. As an aspirant, we have to read N number of books, right? So my strategy, my preparation was not aligned. It was not something कि मैं एक तरीके से किए जा रहा हूँ. But I went to Drishti. The first thing they said me is that कि रुपेश, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन है ना, उनको ना यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करो ऑप्शनल का, और 10 साल के क्वेश्चन को सिलेबस के हिसाब से अरेंज करो. मतलब महाजनपद के क्वेश्चन उसके सामने, वैदिक एज के क्वेश्चन उसके सामने, राइट, हड़प्पा का क्वेश्चन उसके सामने, मौर्य का क्वेश्चन उसके सामने, गुप्ता के क्वेश्चन उसके सामने. यू नो व्हाट हैपेंड? इट वॉज लाइक ए मिरेकल हैपनिंग विद मी कि मुझे एक्चुअली में पता चला कि इन टॉपिक्स का थीम क्या है. वेयर इज दिस यूपीएससी गोइंग? कहाँ जा रहा है ये? क्या पूछ रहा है ये? आज तक मैं बस बुक्स उठा करके रैंडमली पढ़ रहा था, बट उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये टॉपिक, ये थीम्स है. अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो इन एरियाज पे हिट करना है. ये मुझे तब पता चला व्हेन आई वाज प्रोफेशनली वर्किंग इन सम कोचिंग इंडस्ट्री एंड स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर जोन, जहाँ पे आपका टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना हो या फिर कॉपी इवैल्यूएशन करना हो. ऐसी जगहों पे काम करने में कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आई स्ट्रांगली फील आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है. ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू एडिट हियर टू एवरी वन ऑफ यू, अगर आपने 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, माई डियर फ्रेंड, प्लीज टेक अ ब्रेक. बिकॉज ये लूप ऐसा है, इट विल डिवास्टेट एवरीथिंग. और मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताना चाहता हूँ. पता है, जब आप कहीं पे काम करते हो ना, जब आप कहीं पे जॉब करते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर प्रोडक्टिव बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो जो वैल्यू एडिशन ला रहा है सामने के लिए. यू आर एक्चुअली फीलिंग दैट मैं प्रोडक्टिव हूँ, मेरी लाइफ प्रोडक्टिव है, मैं कुछ कर रहा हूँ. सो वो सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस लूप से बाहर निकल करके 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, टेक अ पॉज, जस्ट गो वर्क समवेयर. मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. शक्ति दुबे मैम, हु वाज ऑल इंडिया रैंक 1 दिस टाइम इन 5th अटेम्प्ट, उन्होंने भी बीच में ब्रेक लिया था एंड शी वाज वर्किंग इन वाजीराम एंड रवि एज अ मेंटोर. बिकॉज यू नो योरसेल्फ कि मैं 3 साल 4 साल कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ, प्रिपेयर करते जा रहा हूँ, फेल होते जा रहा हूँ. नाउ माई माइंड हैज बिन फक्ड अप. आई लिटरली वॉन्ट अ ब्रेक. टेक अ ब्रेक, वर्क समवेयर, earn some money, earn some confidence. You will be feeling as if you have some worth. You are actually productive, and then look for this exam. Please do not come randomly 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद में. 4 अटेम्प्ट हो गए मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आपने 4-5 साल डाल दिए अपने लाइफ के. उसके बाद से रैंडमली मत आओ इस एग्जाम के लिए. दैट इज समथिंग, ये खत्म कर देगा सब कुछ. वही एग्जाम्पल है. जितना ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करोगे उस रेत को अपने हाथों में, वो रेत उतनी ज़्यादा फिसलती चली जाएगी. एंड दैट इज हाउ दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी. अभी प्रीलिम्स हुआ है, कुछ दिन हुए. आई थिंक हो सकता है आप वीडियो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी देखोगे, राइट. द इंटेंशन ऑफ वीडियो इज नॉट टू मेक यू फील डीमोटिवेटेड, रेदर टू मेक यू फील अवेयर. यूट्यूब पे सारे कोचिंग्स अभी अपनी मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, राइट. मैं मना नहीं कर रहा, आप ज्वाइन करो, स्पेशली ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो इनिशियल अटेम्प्ट में, राइट. आई इवन सपोर्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड ऑल. बट जो रिपीटर्स है, मेक श्योर आपका एक अटेम्प्ट कैलकुलेटिव होना चाहिए. बिकॉज आपका एक अटेम्प्ट आपके लाइफ को devastate कर सकता है. Anyways, see you tomorrow in some other video. Take care everyone. God bless you all. Thank you so much.